Hello and welcome to the featured news discussion for 25th June 2021. My name is Harsh Singh and today we will discuss the response of Reserve Bank of India on the COVID crisis. Now this is the featured news for the day and this is the first video only on the featured news. The second video will be on rest of the Gazette discussion placed right after this video. So do watch both the videos. Now getting back to this video talks about what is the reason that RBI is so proactive in participation in the recovery after COVID and what are the various kinds of responses RBI has taken and its impact on the economy. So let's get set go. Now, the economy has fallen very much because of COVID enforced lockdowns and different measures for the economic system. So GDP has reduced as much by around 75%, right? It has contracted by 24%. But the best part is that it will also make a comeback very soon because of this fall. It will make a quicker comeback. This is what the article mentions, right? However, to make a comeback, the government, RBI, all the players, private players have to participate. And this is where RBI needs effective participation. Why? First reason for its participation which is required to be effective is because the government's fiscal has not been up to the mark. The government's aid to the industry, government also gives money, tax incentives, right? Lesser taxes in the system. So the government fiscal stimulus package has been low and therefore RBI has to jump in and provide relief in terms of many measures, right? So we will see what are the measures in a short while. The second reason why RBI must participate effectively is because in India, RBI is not only the bank of the banks. So this is RBI, this is the bank of the banks. These are smaller banks, PSU banks, private banks and rural banks, and RBI is the bank of the banks. This is not the only function. RBI also ensures that inflation is controlled. RBI also ensures that the forex is reserved, parked with it. RBI also ensures that the whole financial system is operated, regulated, right? Payment and settlement system is managed. Debt of the country is under control. So RBI is the monetary authority. It is entitled with a lot of functions and therefore it is RBI's prerequisite. It is responsibility. It is the part of RBI's charter to ensure RBI's participation and take important measures. Okay. So now we will see certain very important measures. The keywords must be noted. So let's proceed. Right. The first measure that RBI has taken in terms of monetary policy is helping with reducing the repo rate, reducing the reverse repo rate and reducing the MSF, marginal standing facility. Now these are the rates at which the banks can take money from RBI. So if this rate is reduced, will the banks be able to take more money or less money? Of course they will be able to take more money. अगर इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं तो ये ज्यादा पैसे लेंगे, अगर ज्यादा पैसे लेंगे तो ये ज्यादा पैसा लोगों को देंगे, है ना, और ये कम रेट पे भी देंगे ना, क्योंकि इन्होंने लोन भी कम रेट पे लिया आरबीआई से. सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज द रेपो रेट हैज बीन डिक्रीज्ड, देयर विल बी मोर लिक्विडिटी इन द सिस्टम. ये एक नेचुरल प्रिंसिपल है, इसको याद कर लें. रेपो रेट कम, रिवर्स रेपो रेट कम किया आरबीआई ने, मतलब आरबीआई चाहता है कि ज्यादा पैसा मार्केट में इंजेक्ट हो जाए, राइट? सो इट लीड्स टू मोर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट. Okay, what is MSF? Marginal standing facility is the urgent money, urgent percent of interest at which money is given to the bank. अगर ओवरनाइट लेंडिंग करनी है, तुरंत पैसे चाहिए, किसी बैंक को कम पड़ रहा है, तो तुरंत MSF लेकर के वो पैसे आरबीआई से लोन ले लेता है शॉर्ट टर्म के लिए. ओके, तो ये तीनों चीजों में आरबीआई ने अपने इंटरेस्ट कम किए हैं. दूसरा, कैश रिजर्व रेशियो. सो व्हाट इज कैश रिजर्व रेशियो? हर बैंक के पास, एवरी बैंक हैज गॉट सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी रिजर्व विद देम. It will not be utilized for any work. So around 4% say, if this is reserved with the bank, they will not be using it for any purpose let anything else happen, but they will not be using this money for any purpose. So this money जो इतना रखते हैं, इसको और आरबीआई ने कम करके अराउंड 3% बोल दिया है. ठीक है, तो इससे 1% जो बचा, इसको फिर से लेंड कर सकते हैं मार्केट में, तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी मार्केट में, पैसा बढ़ जाएगा मार्केट में. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. Accommodative stance of RBI. तो आरबीआई ने बोला है कि इफ इन केस गवर्नमेंट नीड्स मनी, डेफिसिट फाइनेंसिंग. डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब गवर्नमेंट आमदी ने अठन्नी, खर्चा रुपया. अगर डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी है, अगर गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं है, तो हम ज्यादा नोट नहीं प्रिंट करेंगे. वी विल नॉट प्रिंट न्यू नोट्स, वी विल बी accommodative. Accommodative कैसे? नाउ आरबीआई विल एंटर द सेकेंडरी मार्केट.
ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड ऑल, तो सेकेंडरी मार्केट में एंटर करके और गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज खरीद लेगा, अपने पास सिक्योरिटीज रख करके और मार्केट में गवर्नमेंट को फिर पैसे चैनलाइज कर देगा, ठीक है। तो सेकेंडरी मार्केट में आकर ये पूरा काम करेंगे ये लोग, क्योंकि प्राइमरी मार्केट में अगर ये लोग पैसे अगर इंजेक्ट करते हैं, इफ दे इंजेक्ट मोर मनी बाय प्रिंटिंग मनी, ये डायरेक्ट इन्फ्लेशन करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सेकेंडरी मार्केट में इन्फ्लेशन नहीं होगा, बट फिर भी थोड़ा रेगुलेटेड होगा, एक चैनल के थ्रू होगा, राइट। सो देयरफॉर accommodative stance, this is what is important. So these keywords, right, so liquidity adjustment facility, these are called as LSF, right, these measures. Then cash reserve ratio, accommodative stance, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं आपके आंसर के लिए, आरबीआई के मेजर्स के लिए। अब आरबीआई कर रहा है नहीं कर रहा है, आप अगर ये मेजर्स डाल देंगे अपने आंसर में कि ये करना चाहिए तो भी आपका आंसर अच्छा बनेगा। अगर आरबीआई को करना चाहिए, आपको ये सजेस्ट करना है तब भी अच्छा होगा। आरबीआई कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है, तो आपके आंसर हर जगह से वैलिड हो जाएंगे अगर आप ये कीवर्ड्स अपने पास अपने मन में रखेंगे और अगर इसको यूज करते रहेंगे। हाँ, यूज करना इंपॉर्टेंट है, मन में रखकर याद करना इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, सो व्हाट इज दिस? अब क्या होता है कि कुछ बैंक्स को, कुछ इंस्टीट्यूशंस को ना लंबे टाइम के लिए पैसे चाहिए होते हैं, 1 साल से ज्यादा के लिए। अगर 1 से 3 साल के लिए पैसे ज्यादा चाहिए आपको तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा लगता है सरकार की तरफ से, पर लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस में आपका इंटरेस्ट रेट सिर्फ रेपो रेट के इक्वल रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। तो अब कम रेट पर ही सरकार लॉन्ग टर्म के लिए भी लोन दे रही है, तो स्टेबल है ना इकोनॉमिक सिस्टम के लिए कि आपको पैसे लौटाने नहीं है और इंटरेस्ट कम ले रहे हैं। सो दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज अ गुड मेजर फ्रॉम द गवर्नमेंट। ऑल्सो इनका फोकस कहाँ होगा? स्मॉल एंड मिड साइज कॉर्पोरेट्स पर। अब देखिए जो छोटे कंपनीज है उनको इंपैक्ट कैसे पड़ रहा है। बड़े कंपनी के पास क्रेडिट ज्यादा होता है, ठीक है, उनके पास पैसे ज्यादा होते हैं। अगर ये छोटी कंपनियां हैं, इन्होंने बैंक से लोन लिया और उसके बाद प्रोडक्शन किया, अब इनका मार्केट है, यहाँ पर मार्केट में सामान बेचते हैं एंड दे गेट मनी, उससे 1% ये वापस देते हैं और एक प्रॉफिट अपने पास रखते हैं, अपने कर्मचारियों को रुपए देते हैं और अपना काम चलाते हैं, प्रॉफिट रखते हैं, पर एक पार्ट सरकार को भी, बैंक को भी देते हैं। पर अगर ये पूरा कस्टमर वाला चैनल ही टूट गया तो इनको क्या पैसे मिलेंगे वापस? इनके नहीं मिलेंगे। तो इनको दे विल नीड मोर मनी फ्रॉम द बैंक्स, ठीक है, इनको ज्यादा पैसे मिलेंगे थोड़े, तभी जाके इनका काम फिर प्रोडक्शन चालू होगा, क्योंकि इनके पास तो उतने पैसे बचे ही नहीं है, सेविंग्स है ही नहीं इनके पास, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पर लॉन्ग टर्म इनको इंटरेस्ट, कम रेट पर इंटरेस्ट पे इनको पैसे मिल जा रहे हैं सरकार से। तो ये आरबीआई यही कर रही है, सरकार से पैसे मतलब कि बैंक से पैसे मिल जा रहे हैं, आरबीआई इसी को फैसिलिटेट कर रही है। फिर स्पेशल रीफाइनेंसिंग फैसिलिटीज, अब क्या होता है कि ये जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है, सिर्फ बैंक्स नहीं है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, नाबार्ड भी है, ठीक है, सिडबी भी है, एग्जिम बैंक भी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, राइट, नाबार्ड भी है एग्रीकल्चरल लोन के लिए। तो आरबीआई क्या करता है कि इन सबको थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा रुपए दे देता है, तुम ले लो 10,000 करोड़, तुम ले लो 20,000, तुम ले लो 50,000 करोड़ और लोगों में डिसेमिनेट करो। ओके, दिस इज व्हाट आरबीआई डज। तो refinancing, this is called as refinancing, it is financing those financiers, refinancing. So important keyword here, it is supporting these organizations. What is ways and means advance? Now गवर्नमेंट की आमदनी 98 है, खर्चा रुपया है, मतलब जितना गवर्नमेंट लेती है अपने पास पैसा आता है उससे कहीं ज्यादा पैसा उनका निकलता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट डेफिसिट में चली जाती है। अगर सरकार डेफिसिट में गई तो कोई तो पैसे देगा अर्जेंट टाइम में, अगर कोविड है, हमें वैक्सीनेशन चाहिए, दवाइयां चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, कहां से होगा? रिसर्च करना है, तो वेज एंड मीन एडवांस के थ्रू होगा। आरबीआई इसमें भी, मतलब कि सरकार इंटरेस्ट ले लेती है, सरकार आरबीआई से पैसे उधार मांगती है और इंटरेस्ट देती है। तो वेज एंड मीन्स एडवांसेस में कितना हम लोन ले सकते हैं, इस पर भी एक लिमिट है, कितना स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है, कितना सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है, तो उसको भी आरबीआई ने रिलैक्स कर दिया है, ठीक है। फिस्कल कॉर्पोरेशन, ठीक है, मतलब डायरेक्ट सरकार से जो कॉर्पोरेशन है वो उसकी बात हो रही है। सो दिस इज वेयर आरबीआई हैज हेल्प्ड अ लॉट, ओके। सो इट बिकम्स द डेट मैनेजर, पूरा डेट मैनेजर तो है ही, बट यहाँ पर और लिक्विडिटी मार्केट को दे रही है, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस इसमें हेल्प करती है। तो गवर्नमेंट जब अपने सिक्योरिटीज मार्केट में रिलीज करता है कि ये बेचो, तो ऑर्गेनाइजेशंस इसको खरीदते हैं ना, आरबीआई भी खरीद लेता है इसको, सरकार को पैसे दे देता है कि ठीक है आपका सिक्योरिटी हमारे पास और पैसे आपके पास। जब आप बाद में ये साइकिल रिवर्स भी हो सकता है, इफ देयर इज मोर इन्फ्लेशन इन द मार्केट देन आरबीआई विल टेक द मनी एंड गिव द सिक्योरिटी बैक टू द गवर्नमेंट, राइट। सो दिस इज हाउ दिस इज मैनेज्ड बाय द आरबीआई। क्रेडिट एनहांसमेंट मेजर, तो ये क्या है? ये जितने हमने मेजर्स बोले ये क्रेडिट एनहांसमेंट ही है, लेकिन एक और मेजर है मोरेटोरियम। अब देखिए किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अगर पैसे लिए बैंक से, ठीक है, पर ये वापस नहीं दे पा रहे हैं, 3 महीने तक नहीं दिए, नॉन प्रॉफिट एनपीए हो जाएगा, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा वो,
ठीक है। उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन ने लोन लिया है उसको ये लोग बैंकरप्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके एसेट बेच भी सकते हैं, ठीक है। जो बैंकरप्सी कोड है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड बहुत स्ट्रिक्ट बनाया गया है, इसके कारण ये सारे ठप भी हो जाएंगे, इनका बिजनेस ठप हो जाएगा अगर ये लोन वापस टाइम पर नहीं देते हैं तो आरबीआई ने बोला है आप टेंशन ना लो, पैसे नहीं देने के लिए थोड़ा और टाइम ले लो, तो इसी को बोलते हैं मोरेटोरियम। ये मोरेटोरियम भी आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है, एक्सटेंड किया है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट अनदर मैकेनिज्म व्हिच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। सो फोरबियरेंस मतलब जो रेगुलेशन आरबीआई के हैं जो सख्त होते हैं, वो क्योंकि पैसा लेना और देना काफी स्ट्रिक्टनेस वाला काम है, अगर टाइम पर नहीं मिलेगा तो इश्यूज हो जाएंगी, पूरे सिस्टम में कंस्ट्रेंट हो जाएंगी, तो अभी इसको थोड़ा सा रिलैक्स किया गया है, ठीक है। तो ये सब चीजें आरबीआई ने किया है। हेल्ड टू मैच्योरिटी, अब बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं ना जो आप बीच में बेच सकते हैं, आपने कुछ लोन दिया, अब ये लोन आपको, आपने लोन दिया किसी को, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन थे, इनको लोन लेना था, आपने लोन दिया, अब आप इसको तब तक रखेंगे जब तक ये पूरा बॉन्ड मैच्योर नहीं हो जाता है, तो ये इसको कहते हैं हेल्ड टू मैच्योरिटी, राइट। बट अगर आप इसको बीच में बेच सकते हैं, किसी को दूसरे को बेच सकते हैं, तो मैच्योरिटी तक जरूरी नहीं है कि आपको रखना पड़े। सो दिस इज कॉल्ड एज हेल्ड टू मैच्योरिटी। अगर हेल्ड टू मैच्योरिटी वाला हुआ ये ज्यादा स्टेबल होगा ना, आपको बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं, आप अपने पास रखेंगे, तो हेल्ड टू मैच्योरिटी बॉन्ड्स का स्टेटस जो है इसको इंक्रीज कर दिया गया है। सो दीज आर द मेजर्स, ठीक है। सो ऑल यू नीड टू डू इज नोट डाउन द कीवर्ड्स, जो भी कीवर्ड्स यहाँ पर अभी हमने तुरंत डिस्कस किए, राइट, फर्स्ट पेज से लेकर सेकंड पेज तक। फर्स्ट वंस वर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, है ना, एंड दी एमएसएफ, राइट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर ये तीनों आएंगे। कैश रिजर्व रेशियो, एकोमोडेटिव स्टैंस ऑफ आरबीआई, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, अगर ये कीवर्ड्स आपके पास रहे तो आपका आंसर सही रहेगा। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, स्पेशल रीफाइनेंसिंग स्पेशली फॉर एनबीएफसी, हाँ, लॉन्ग टर्म रेपो, वेज एंड मींस एडवांस, फिस्कल मेजर, राइट, ऑपरेशन ट्विस्ट, क्रेडिट एनहांसमेंट, है ना। So these are important measures you can put in your answer. Okay, moving ahead, what is the impact it has caused? Impact ये है कि पूरा फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबल है, पैसे की कहीं भी कमी किल्लत नहीं हो रही है। अब अगर आप पैसे दे रहे हैं तो फिर से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, प्रोडक्शन स्टार्ट होगा तो कंजम्पशन भी स्टार्ट होगा, कंजम्पशन स्टार्ट होगा तो आपको रुपए मिलेंगे, रुपए मिलेंगे तो आपका पूरा सिस्टम इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा, फिर ये साइकिल रिपीट हो जाएगा। यही आरबीआई का काम है, यही मेंटेन करना आरबीआई का काम है, ठीक है। तो फाइनेंशियल सिस्टम पूरा स्मूथली फंक्शन करेगा, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी एकोमोडेटिव हो रही है अभी इसके थ्रू, क्यों? क्योंकि आरबीआई प्रिंट नहीं कर रहा है, उसी पैसे को हैंडल करने की कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो ये अच्छी बातें हैं, पर एक कंसर्न ये है कि देयर इज अ मिसमैच इन परफॉर्मेंस। अब आरबीआई पैसे तो इंजेक्ट करा रहा है इकोनॉमी में अलग अलग तरीके से, बट सारे सेक्टर्स अभी भी ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एविएशन सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, अब इन सेक्टर में जैसे फूड एंड बेवरेज सेक्टर्स, ठीक है, तो ये कहाँ चल रहे हैं? एंटरटेनमेंट सेक्टर, ये कहाँ चल रहे हैं? कुछ नहीं चल रहा है। तो अभी ऑल्दो इकोनॉमी रन कर रही है, लेकिन मिड टर्म एंड मिड फ्यूचर में 1-2 साल में अलग अलग इंपैक्ट्स भी दिखेंगे। स्ट्रेस विल इंक्रीज विद टाइम। इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर को। ओके